کہ پنجاب کا 5,131 ارب کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ تنخواہوں کے لیے 650 ارب، پینشن کے لیے 505 ارب 80 کروڑ روپے مختص ہوں گے۔ NFC کے تحت 3,793 ارب ملنے کا تخمینہ ہے۔ صوبائی محصولات کی مد میں 1,330 ارب کی آمدن متوقع ہے۔ وزیر اعلیٰ نے منظوری دے دی ہے، صوبائی کابینہ آج منظوری دے گی۔ گورنر پنجاب نے آج 2 بجے پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ تنخواہوں کے لیے 650 ارب، پینشن کے لیے 505 ارب 80 کروڑ مختص ہوں گے۔ ترقیاتی بجٹ صرف 47% ہوگا۔ NFC کے تحت 3,793 ارب ملنے کا تخمینہ۔ صوبائی محصولات کی مد میں 1,330 ارب کی آمدن متوقع ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے منظوری دے دی۔ بجٹ میں تنخواہوں کے لیے 650 ارب، پینشن کے لیے 505 ارب 80 کروڑ مختص ہوں گے۔ پنجاب فائنانس کمیشن کے لیے 800 ارب، صحت کے لیے 680 ارب اور تعلیم کے لیے 900 ارب روپے سے زائد مختص کیے جانے کی تجویز ہے۔ مفت ادویات کے لیے 100 ارب، رمضان پیکج 35 ارب، سبسڈی کے لیے 80 ارب، ستھرا پنجاب پروگرام کے لیے 150 ارب رکھے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے جاری منصوبوں کے لیے 200 ارب روپے سے زائد رکھنے کی سفارشات ہیں۔ ذرائع کے مطابق بجٹ میں لیپ ٹاپ، الیکٹرک اسکوٹیز، سائیکل اسکیم، ہونہار اسکالرشپ، کسان کارڈ، ہمت کارڈ اور اقلیتی کارڈ جیسے فلاحی پروگرام بھی شامل ہوں گے۔ اور پنجاب کے ترقیاتی بجٹ پر بڑا کٹلکیا 1450 ارب سے کم ہو کر 752 ارب رہ گیا۔ 493 ارب جاری ترقیاتی اسکیموں، 258 ارب 75 کروڑ روپے نئی اسکیموں کے لیے مختص۔ نواز شریف کینسر اسپتال کے لیے 20 ارب رکھنے کی تجویز۔ کلثوم نواز کینسر اسپتال DG خان پر 15 ارب لاگت آئے گی۔ مریم نواز آٹزم اسکول ہر ڈویژنل سطح پر بنانے کا فیصلہ، لاگت 4.5 ارب آئے گی۔ مریم نواز اسپورٹ سٹی لاہور پر 50 ارب خرچ ہوں گے۔ پنجاب حکومت نے آئندہ مالی سال کے لیے صوبے کا سالانہ ترقیاتی پروگرام 1450 ارب روپے سے کم کر کے 752 ارب روپے تک محدود کرنے کی تجویز تیار کر لی۔ مجموعی طور پر 3,560 ترقیاتی منصوبے شامل ہوں گے۔ دستاویزات کے مطابق 493 ارب 25 کروڑ روپے جاری ترقیاتی اسکیموں، 258 ارب 75 کروڑ روپے نئی اسکیموں کے لیے مختص کیے جائیں گے۔ 3,117 جاری منصوبوں کے لیے 353 ارب 84 کروڑ روپے لوکل فنڈنگ اور 139 ارب 40 کروڑ روپے فارن فنڈنگ رکھی گئی ہے۔ 420 نئی اسکیموں کے لیے 256 ارب روپے لوکل اور 4 ارب 68 کروڑ روپے فارن فنڈنگ کی تجویز دی گئی۔ حکومت نے نواز شریف کینسر اسپتال لاہور کے لیے 20 ارب روپے، کلثوم نواز کینسر اسپتال DG خان کے لیے مجموعی طور پر 15 ارب روپے لاگت اور آئندہ مالی سال کے لیے 80 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز دی ہے۔ وزیر اعلیٰ لیپ ٹاپ پروگرام کے لیے 15 ارب 69 کروڑ روپے، کسان کارڈ پروگرام اور اس کے فیز 2 کے لیے مجموعی طور پر 9 ارب 22 کروڑ روپے رکھنے کی سفارش کی ہے۔ لائف اسٹاک کارڈ فیز 2 کے لیے 1 ارب اور پرواز کارڈ برائے انٹرنیشنل پلیسمنٹ پروگرام کے لیے 30 کروڑ روپے مختص کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ دستاویزات کے مطابق میاں نواز شریف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی قصور، نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ لاہور کا منصوبہ ADB میں شامل کیا گیا۔ مریم نواز اسپورٹ سٹی لاہور، آٹزم اسکولز، ہیلتھ کلینکس، فیملی پارکس اور مختلف اسپورٹس منصوبوں سمیت متعدد منصوبے بھی ADB میں شامل کیے گئے ہیں۔ ترقیاتی بجٹ میں نمایاں کمی کے باعث کئی جاری منصوبوں کی رفتار متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ محکمہ ایکسائز کی مجموعی کارکردگی بہترین، لاہور کی پراپرٹی ٹیکس وصولی بہتر نہ ہو سکی۔ موٹر برانچ ریکوری میں سب سے اوپر، پراپرٹی کے تینوں ریجنز آخری نمبرز پر براجمان۔ محکمہ ایکسائز نے اب تک 19.5 ارب اضافی وصول کیے۔ DG ایکسائز نے ہدف کے لیے تمام ڈائریکٹرز کو فیلڈ میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ محکمہ ایکسائز کی مجموعی کارکردگی بہترین، لاہور کی پراپرٹی ٹیکس وصولی بہتر نہ ہو سکی۔ موٹر برانچ لاہور ریکوری میں سب سے اوپر، پراپرٹی کی تینوں ریجنز آخری نمبروں پر براجمان ہیں۔ محکمہ ایکسائز نے گزشتہ مالی سال کی نسبت رواں مالی سال اب تک 19.5 ارب اضافی وصول کیا۔ DG ایکسائز عمر شیر چٹھا نے رواں مالی سال 75 ارب کا ہدف حاصل کرنے کے لیے تمام ڈائریکٹرز کو فیلڈ میں رہنے کا حکم دے دیا۔ رواں مالی سال میں صوبہ بھر میں پہلے نمبر پر موٹر برانچ نے 18.5 ارب کے ہدف سے 2 ارب اضافی وصول کیا۔ موٹر برانچ لاہور نے ایکسائز کے ٹوٹل ہدف کا 27% وصول کیا۔ پراپرٹی ٹیکس کی ریجن A لاہور 5 ارب 41 کروڑ کے ہدف میں 3 ارب 61 کروڑ وصول کر کے آخری نمبر پر ہے۔ ریجن B لاہور 9 ارب 10 کروڑ کے ہدف میں 7 ارب سے زائد وصول کر کے 12 نمبر پر براجمان ہے۔ ریجن D لاہور ہدف کا 90% وصول کر کے 11 نمبر پر موجود ہے۔ سرگودا ریجن ہدف کا 3% اضافی وصول کر کے دوسرے، گجرات ریجن ہدف کا 2% اضافی وصول کر کے تیسرے نمبر پر ہے۔
और यहाँ आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़, इको टूरिज़्म के फ़रोग़ के लिए नए मनसूबे शामिल करने की तजवीज़ दे दी है। लाहौर में जलो बर्ड पार्क की तरक्की को तरजीही मनसूबों में शामिल किया गया है। मनसूबे के तहत जलो बर्ड पार्क को जदीद एक्सपीरियंस जोन में तब्दील किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़, इको टूरिज्म के फरोग के लिए नए मंसूबे शामिल करने की तजवीज़ दे दी। लाहौर में जल्लो बर्ड पार्क की तरक्की को तरजीही बुनियादों में शामिल किया गया है। मंसूबे के तहत जल्लो बर्ड पार्क को एक्सपीरियंस जोन में तब्दील किया जाएगा। 2 अरब 9 करोड़ 55 लाख रुपए लागत आएगी। मंसूबे के तहत पंजाब वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स डिपार्टमेंट के लिए जदीद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी कायम किया जाएगा। लाहौर के सफारी जू में वाइल्ड लाइफ कम्युनिकेशन हब और एक्सपीरियंस सहूलियात के कयाम के लिए 54 करोड़ 7 लाख 93 हजार रुपए मालियत का मंसूबा भी तजवीज किया गया है। मंसूबे के तहत वाइल्ड लाइफ प्रमोशन कैफेटेरिया, एलिवेटेड कैंप ऑफिस, जदीद थर्मल ड्रोन्स की खरीदारी और वाइल्ड लाइफ आगाही सरगर्मियों को फरोग दिया जाएगा। सफारी जू लाहौर में मकबूल वाइल्ड लाइफ फ्लोट शोज का सिलसिला भी जारी रखा जाएगा। पंजाब भर में जंगली हयात के दुरुस्त आदादो शुमार के हुसूल और तहफ़्फ़ुज़ की बेहतर मंसूबा बंदी के लिए पंजाब वाइल्ड लाइफ मरदमशुमारी फेज 2 का मंसूबा भी शामिल किया गया है। अब बात करें शहरियों के मसाइल के हवाले से, तो जौहर टाउन ब्लॉक की 1 से मुल्हका इस्लाम पार्क स्ट्रीट का सीवरेज सिस्टम नकारा हो गया है। गटर उबलने से गली में सीवरेज का पानी जमा होने से मकीनों को मुश्किलात का सामना है। गली में जमा गंदा पानी हादसात की वजह बनने लगा और आमदोरफ्त भी शदीद मुतासर है। इलाका मकीनों का कहना है कि गंदगी के बाइस इलाके में वबाई अमराज फैल रहे हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं इलाका मकीन के नोटिस लेकर सीवरेज मसाइल को हल किया जाए। क्या सूरत हाल है इस इलाके की, मज़ीद अपडेट करेंगे आफाक नज़ीर। जी आफाक। बिल्कुल जी, भल्ला रोड से मुल्हिका इस्लाम पार्क स्ट्रीट का सीवरेज सिस्टम नकारा हो चुका है, जिसकी वजह से गली में जो है वो गंदा पानी जमा है। ऐसे में न सिर्फ आमदोरफ्त मुतासिर हो रही है बल्कि मच्छरों की अफजाइश बढ़ चुकी है, हादसात मामूल बन चुके हैं। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, मजीद इन्हीं की जुबानी जानते हैं। बताइएगा कब से सूरत हाल में जो है वो गुजारा करने पर मजबूर है? ये रमजान शिफ्ट से चल रहा है काम, तो कोई इधर आने वाला नहीं है, ना तो कोई सीवरेज देखने वाले आता है, ना कोई जो है वो सोलर सिस्टम वाली कोई टीम भी इधर नहीं आती। ये रमजान शरीफ से लेके अभी तक यही हाल बना हुआ है। गंदा पानी है, पीने वाला पानी के अंदर मिक्स हो रहा है। लोग जो नमाजी हैं उनको वहां से बाहर आने की भी दुश्वारी होती है, अंदर जाने की दुश्वारी होती है। तो इधर तो कोई हाल नहीं पूछने वाला। और हम जो है ना काम से अपील करते हैं कि इस गली को अपनी मद्देनजर रख के। बिल्कुल जी, यहाँ के इलाका मकीनों का कहना है कि शिकायत के बावजूद जो मुतल्लिका इंतजामिया है उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी और ये मसला जो है वो अभी तक जूं का तू मौजूद है। उनकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि यहाँ पर जो सीवरेज सिस्टम का मसला है, पाइपलाइन यहाँ पर बिछाई जाए या लाइनों की सफाई को यकीनी बनाया जाए, जिसकी वजह से रोड के ऊपर जो गंदा पानी खड़ा है इसका हल जो है वो निकल सके, गंदे पानी का हल निकाला जाए। शहरी ये मुतालबा कर रहे हैं। आफाक नज़ीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और गैर मुस्लिम तलबा के लिए अलग मजहबी निसाब मंजूर। मसीही तालीम जमात अव्वल तनाहम और 11वीं तक पढ़ाई जाएगी। हिंदू तलबा के लिए सनातन धर्म की कुतब जमात अव्वल तसौम के लिए मंजूर की गई है। सिख तलबा के लिए सिख धर्म निसाब कलाशा तालीम की दर से कुतब मंजूर हुई है। बुद्ध मत ज़रतश्ती तलबा के लिए भी निसाब की मंजूरी दी गई है। गैर मुस्लिम तलबा के लिए पहली बार अलग मजहबी निसाब की मंजूरी दी गई। मसीही तालीम जमात अव्वल तनाहम और 11वीं तक पढ़ाई जाएगी। हिंदू तलबा के लिए सनातन धर्म की कुतब जमात अव्वल तसौम मंजूर की गई। सिख तलबा और क्लाशा तलबा के लिए भी दरसी कुतब मंजूर की गई। तालीमी सेशन 2026-27 से नई मजहबी दरसी कुतब का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मसीही तलबा के लिए मसीही तालीम जमात अव्वल तनाहम और 11वीं जमात तक पढ़ाई जाएगी। बुद्ध मत तलबा के लिए बुद्ध मत की कुतब जमात अव्वल तसौम के लिए शामिल की गई। ज़रतश्ती तलबा के लिए भी निसाब जमात अव्वल ता पंजम तक मंजूर किया गया। रेक्टर का कहना है अक़लियती बरातियों को उनके मजहब के मुताबिक तालीम की सहूलत फराहम की जा रही है। मंजूर शुदा निसाब का इतलाक तालीमी सेशन 2026-27 और उसके बाद से होगा। हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में सिर्फ 482 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं। हायर सेकेंडरी स्कूलों में सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तादाद सिर्फ 2811 रह गई है। पंजाब में हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों की तादाद 7000 से जायद है। इधर सरकारी स्कूलों के लिए लाइब्रेरीज ऑन व्हील्स मंसूबा शुरू किया जाएगा। 19 करोड़ 80 लाख से जदीद मोबाइल लाइब्रेरियां बनेंगी। हर मोबाइल लाइब्रेरी में 20 जदीद टैबलेट नस्ब किए जाएंगे।
पंजाब भर के हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में सिर्फ 482 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होने का इंकशाफ हुआ है। पंजाब भर में हायर सेकेंडरी स्कूलों में सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तादाद सिर्फ 2811 रह गई है। पंजाब भर में हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों की तादाद 7000 से जायद है। पंजाब भर में 3157 सरकारी स्कूलों में मुस्तकिल हेड्स और प्रिंसिपल तैनात हैं। मैट्रिक पास टीचर्स की तादाद सिर्फ 20 रह गई है। इस वक्त सीनियर स्कूल टीचर्स की तादाद 43,000 है। मिडिल और प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने वाले असातिज़ा की तादाद 2.5 लाख है। पंजाब भर में प्राइमरी और मिडिल स्कूलों की तादाद 30,000 के करीब है। अभी तक कैफ को 11,000 से ज्यादा स्कूल ठेके पर दिए जा चुके हैं। सरकारी स्कूलों के लिए लाइब्रेरीज ऑन व्हील्स मंसूबा शुरू किया जाएगा। 19 करोड़ 80 लाख से जदीद मोबाइल लाइब्रेरियां बनेंगी। मंसूबे के तहत 85 इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदी जाएंगी। हर मोबाइल लाइब्रेरी में 20 जदीद टैबलेट नस्ब किए जाएंगे। मोबाइल लाइब्रेरी रोजाना एक स्कूल का दौरा करेगी। हर गाड़ी मुकर्रर शेड्यूल के तहत स्कूलों में तालीमी खिदमात फराहम करेगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियां रोजाना मुकर्रर चार्जिंग स्टेशन स्कूल से चार्ज होंगी। मंसूबे से हर साल के तलबा को लाइब्रेरी और डिजिटल लर्निंग की सहूलत मुयस्सर आएगी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के मुताबिक तलबा में मुतालिया और कुतुब बीनी के रुझान को फरोग दिया जाएगा। मोबाइल लाइब्रेरी मंसूबा तालीमी मयार बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। CEO तारिक महमूद का कहना है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए तलबा को जदीद तालीमी वसाइल तक रसाई दी जाएगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चकवाल में CCD एहलकारों की फायरिंग से बच्चे की हलाकत का ये मामला है और वाक़े के हवाले से CCD हेडक्वार्टर्स टाउनशिप लाहौर में सहाफ़ियों को प्रेस ब्रीफिंग। लाहौर हाई कोर्ट और उसकी मातहत अदालतों में होने वाली कार्रवाइयों का अहवाल भी जानते हैं इस रिपोर्ट में। हाई कोर्ट में बच्चों की हवालगी के मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत ने 4 बच्चे बाप से लेकर मां के हवाले कर दिए। बच्चों का मां के साथ जाने से इनकार, बाप के साथ जाने के लिए चीखो पुकार। जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम ने सायला आसिया बीबी की दरखास्त पर समाअत की। अदालती हुक्म पर झंग पुलिस ने चारों बच्चों को हाई कोर्ट में पेश किया। सानिहा 9 मई मुगलपुरा में पुलिस की गाड़ियां जलाने का मुकदमा। PTI रहनुमा एजाज चौधरी ने अपना आखिरी बयान सफाई रिकॉर्ड करवाया। अपनी सफाई में 8 गवाहान भी पेश किए। अदालत ने मजीद कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी। ATC कोर्ट के एडमिन जज मंजर अली गिल ने कोट लखपत जेल में समाअत की। एजाज चौधरी ने अपना आखिरी बयान सफाई कलमबंद करवाया। शाम महमूद कुरैशी और डॉक्टर यास्मिन राशिद का बयान सफाई मंगल को रिकॉर्ड किया जाएगा। 14 साल कबल सब्ज़जार में बॉयलर फटने से 25 अफराद की हलाकत और 14 अफराद के जख्मी होने का केस। अदालत ने समाअत 17 जून तक मुलतवी कर दी। 67 गवाहान को तलब कर लिया गया। मॉडल कोर्ट के जज जावेद इकबाल रांझा ने केस की समाअत 17 जून तक मुलतवी करते हुए गवाहों को तलब कर लिया। केस में 3 मुल्जिमान जुबैर इकबाल, जफर इकबाल और जहीर इकबाल नामजद हैं। एक मुल्जिम जहीर इकबाल अदालत में पेश होते होते फोत हो गया। शादी की तकरीब में 200 मेहमानों को ऑर्डर के मुताबिक खाना फराहम न करने पर अकबर शादी हॉल टाउनशिप के मालिक के खिलाफ 10 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर। अदालत में अकबर चौक के शरीफ अहमद ने शादी हॉल के मालिक के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर किया। मौकिफ इख्तियार किया कि उसके बेटे की शादी थी, दावती वलीमा में मेहमानों के लिए खाना कम पड़ गया। आइंदा समाअत 21 जून को होगी। ये मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद कहते हैं कि यौम आशूर 26 जून बरोज जुमातुल मुबारक को होगा। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास बादशाही मस्जिद में हुआ। सदारत चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने की। इजलास में सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा, अलामा मोहम्मद हुसैन अकबर, मुफ्ती इंतखाब नूरी और मौलाना मुख्तार अहमद नदीम समेत दीगर मेंबरान कमेटी और महकमा मौसमियात के नुमाइंदे शरीक हुए। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने कहा कि मुल्क के किसी भी इलाके से चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। कि किसी भी मकाम से माह मुहर्रमुल हराम 1448 हिजरी का चांद नज़र आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई और अदम रोयत रही। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया इंशाअल्लाह यकम मुहर्रमुल हराम 1448 हिजरी 17 जून 2026 बरोज़ बुध को होगी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के इंतज़ामात पर इजलास हुआ। सिक्योरिटी और दीगर अमूर का जायजा लिया गया। पंजाब में पहली बार 4700 इमाम बारगाहों पर QR कोड पैनिक बटन इंस्टॉल किए गए हैं। कमिश्नर्स, RPOs, DPOs को ख़ुसूसी अहकामात जारी किए गए हैं।
वज़ीर आला की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के इंतजामात पर इजलास, सिक्योरिटी और दीगर अमूर का जायजा लिया गया। पंजाब में पहली बार 4700 इमाम बारगाहों पर QR कोड्स, पैनिक बटन इंस्टॉल किए गए। हमारा ये वाला जो अब मुहर्रम आ रहा है कल से इंशाल्लाह, इसको और बेहतर होना चाहिए, बस सिर्फ बेहतरीन नहीं बल्कि बेहतरीन होना चाहिए। जो क्रिटिकल एरियाज हैं, जो रेड में मार्क किए हुए हैं, जिनकी निशानदही अभी IG साहब ने की, उन क्रिटिकल एरियाज में जो हीट मैप्स हैं जहाँ पर आपके पास, उनके अंदर आज से स्पेशल सर्विलेंस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पर अगर आपको एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय करनी पड़ती है, वहाँ पर अगर आपको टेक्नोलॉजी एक्स्ट्रा डिप्लॉय करनी पड़ती है, हालांकि बड़ी अच्छी अभी प्रेजेंटेशन दी है SN यूनुस साहब ने कि एक एक जो जुलूस है, एक एक मजलिस जो है वो CCTV मॉनिटर्ड है, और इसमें जो हमारे अहले तशरीह के उलमा हजरात हैं, ओपिनियन लीडर्स हैं, वो हमारी बड़ी मदद भी कर रहे हैं और बहुत कोऑपरेट भी कर रहे हैं, उनके मैं शुक्रगुजार हूँ। मुहर्रमुल हराम के दौरान 3 सतही सिक्योरिटी प्लान नाफिज करने की हदायत देते हुए कहा कि ड्रोन्स के इस्तेमाल और लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल की हरगिज इजाजत नहीं होगी। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि सूबा भर में मजमूई तौर पर 47,280 मजालिस और जलूस मुनक्किद होंगे। जलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए 1,25,641 पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। पाक फौज की 61 और रेंजर्स की 76 कंपनियां भी तलब कर ली गयी। मरियम नवाज ने कहा कि उलमाए कराम मजालिस और खुतबात में इत्तेफाक और मजहबी हम आहंगी का दर्स दें। इमाम बारगाहों और जलूस के रूट्स पर सफाई की मिसाली इंतजामात किए जाएं। जलूस के रास्तों से लटकती तारें और तामीरी मटीरियल फौरी हटाया जाए। क्लिनिक ऑन व्हील्स, रेस्क्यू 1122 और सिविल डिफेंस का अमला फील्ड में नजर आए। कमिश्नर, RPOs और DPOs को खसूसी अहकामात जारी। सूबाई वज़रा को भी मुतहर्रिक रहने की हदायत दी गई। यहाँ आपको बताएं कि दाता दरबार तौसीम मनसूबे के मुतासरीन में 60 करोड़ रुपए से जायद मुआवजे के चेक तकसीम किए गए हैं। 234 मुतासरा मालिकान को टाउन हॉल लाहौर में मुआवजा अदायगी की तकरीब मुनाकिद हुई। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने कहा कि मनसूबे से शहर की खूबसूरती, तारीखी हैसियत और ट्रैफिक रवानी में बेहतरी आएगी। तरक्याती मनसूबों की तकमील के बाद लाहौर एक नए शहर की शक्ल इख्तियार करेगा। दाता दरबार, भाटी चौक, मोहनी रोड और गिरदोनवा की बहाली और तोसीम मंसूबे के मुतासरीन को मुआवजा अदायगी की तकरीब टाउन हॉल में मुनकिद हुई। 234 मालकान में 600 मिलियन रुपए से जायद मालियत के चेक तकसीम किए गए। तकरीब में वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन, मुशीर बराए AI अली डार ने खुसूसी शिरकत की। मावन खुसूसी राशिद नसरुल्लाह, वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब, DG LDA और डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली इजाज ने शिरकत की। मुकर्रिरीन का कहना था दाता दरबार तोसीम मंसूबा शहर की खूबसूरती, तारीखी शनाख्त और ट्रैफिक की रवानी में नुमाया बेहतरी का बायस बनेगा। आप सबको शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ पे आने का, और इंतहाई दिली तौर पे अपनी लीडरशिप का, मियां नवाज शरीफ का, मरियम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इतनी स्पीड के साथ और बगैर किसी हीरो जन करने के जो जिसका कब्जा था, जो बिस्तरों में बैठा हुआ था, उनको कंपनसेट करें, उनको पैसे दें। दाता काशफ की रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की तोसी और मस्जिद की तोसी हुई है, तो इसहाक डार साहब का नाम मैं समझता हूँ लाज़िम मज़मूम है। उन्होंने हमेशा जो है इस पूरे प्रोजेक्ट की जो है निगरानी की है, और आज तो पूरा लाहौर शहर मैं समझता हूँ कि इसकी तारीखी हुस्सियत बहाल हो रही है। सर्कल गार्डन रिवाइव हो रहा है, उसके गिरदोनवा में बड़ी तफसील से ये मंसूबे जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये सिलसिला चलेगा। मामले खुसूसी राशिद नसरुल्लाह और मुशीर अली डार का कहना था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ख्वाब लाहौर की तारीखी हैसियत को बहाल करना है। जारी तरक्याती मंसूबों की तकमील के बाद लाहौर एक नए शहर की शक्ल इख्तियार करेगा। एक जुमला मुझे मियां नवाज शरीफ साहब का बड़ा याद आता है। उन्होंने हर मीटिंग में कही ये बात कि अगर हम किसी प्रोजेक्ट को लाहौर की तारीखी हैसियत को बहाल कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, अंडरग्राउंड पार्किंग बना रहे हैं, अंडरग्राउंड प्लाजा बना रहे हैं, किसी मज़ार की तोसील कर रहे हैं, तो कोई प्रोजेक्ट मुझे इन बहन भाइयों की आंसुओं, आहों और सिस्कियों पे नहीं चाहिए। हजरत अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार शरीफ पे जो ज़ायरीन आएंगे उनके लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ के अंदर भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं। आप सबका शुक्रिया। इधर जितने अहबाब बैठे हुए हैं, बिलाल यासीन साहब, मियां मरगूब साहब, राशिद नसरुल्लाह साहब, ताहिर फारूक साहब, DC साहब, कैप्टन अली इजाज साहब,
سب نے جس نے اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالا، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے۔ معاوضہ وصول کرنے پر منصوبے کے متاثرین نے حکومت پنجاب کا شکریہ ادا کیا۔ کیمرہ مین احمد علی کے ہمراہ طاہر جمیل خان، سٹی 42۔ صبح وزیر تعمیرات و مواصلات ملک صہیب احمد بھٹ کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں محکمہ ویمن ڈیولپمنٹ کے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کے بیان کے مطابق خواتین کی سہولیات کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر اتفاق کیا گیا۔ اجلاس میں پبلک عمارتوں، سروس ایریاز، بس سٹینڈز اور دیگر عوامی مقامات پر خواتین کے لیے علیحدہ ٹوائلٹ سہولیات اور ڈے کیئر سینٹرز کے قیام کے امور پر تفصیلی غور کیا گیا۔ پارلیمانی سیکرٹری ویمن ڈیولپمنٹ ساتھیہ تیمور اور سیکرٹری ویمن ڈیولپمنٹ سمن رائے نے صوبائی وزیر کو مختلف اقدامات پر بریفنگ دی۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ سیکرٹری صحت اور باطی نادیہ ثاقب، تمام سی اوز اور ایم ایس صاحبان کی شرکت۔ خواجہ عمران نذیر بولے کارکردگی کا جائزہ ماہانہ بنیادوں پر لیا جائے گا۔ ہیٹ ویو سے متعلق حکومتی ہدایات پر عمل درآمد کی ریئل ٹائم مانیٹرنگ کی جائے گی۔ صوبائی وزیر صحت اور باطی خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت سی اوز ہیلتھ اور ایم ایس صاحبان کا آن لائن اجلاس ہوا۔ سیکرٹری صحت نادیہ ثاقب سمیت افسران نے شرکت کی۔ اسٹرینتھننگ ہیومن رائٹس گورننس منصوبے کے آغاز کے لیے مشاورتی تقریب ہوئی۔ ہیومن فرینڈز آرگنائزیشن اور محکمہ انسانی حقوق پنجاب نے اشتراک کیا۔ تقریب میں صوبائی وزیر برائے انسانی حقوق و اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑا نے شرکت کی۔ انسانی حقوق کے فروغ اور بین المذاہب ہم آہنگی کو مضبوط بنانے کے لیے ہیومن فرینڈز آرگنائزیشن اور محکمہ انسانی حقوق پنجاب کے زیر اہتمام اہم مشاورتی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں صوبائی وزیر برائے انسانی حقوق و اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑا نے خصوصی شرکت کی۔ صدر ہیومن فرینڈز آرگنائزیشن ساجد کرسٹوفر، رکن پنجاب اسمبلی اعجاز عالم اگسٹن، چیئرمین کل مسالک علماء بورڈ مولانا عاصم مخدوم، چیئرمین یونائیٹڈ انٹرفیتھ آرگنائزیشن ماڈریٹر ڈاکٹر مجید ایبل شریک ہوئے۔ ایم پی اے سیدہ سمرین، ماریہ طلال، فضا میمونہ اور ایم پی اے رخسانہ شفیق نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑا نے کہا کہ پاکستان ایک امن کا گہوارہ ہے۔ چیف منسٹر پنجاب کا فوکس جہاں پہ لیجسلیٹو ریفارمز کا ہے، وہیں پہ ہماری انٹرفیتھ ہارمنی اس وقت ہماری سب سے بڑی ہمارا وہ انیشیٹو ہے جس پہ ہم کام کریں تاکہ لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں مذہبی حوالے سے ان کو یہ فیل نہ ہو کہ جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ ہمارے مذہبی حقوق سلب ہو رہے ہیں۔ صدر ہیومن فرینڈز آرگنائزیشن ساجد کرسٹوفر اور رکن پنجاب اسمبلی اعجاز عالم اگسٹن نے کہا اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ اور ان کے لیے مؤثر اقدامات وقت کی ضرورت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو ڈسٹرکٹ ہیومن رائٹس کمیٹیز اور پنجاب کی پروونشل ٹاسک فورس ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈ کی جائے تاکہ وہ ہیومن رائٹس کے فروغ کے لیے کام کریں اور جو ایشوز اور چیلنجز ہیومن رائٹس سے ریلیٹڈ ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے۔ تو یہ پروگرام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور ہیومن فرینڈز آرگنائزیشن ایچ ایف او اور ڈپارٹمنٹ آف ہیومن رائٹس اینڈ مائنورٹیز افیئرز اور ہمارے پارلیمنٹرین ہم مل کر ان چیزوں پہ کام کریں گے تاکہ پنجاب میں ہیومن رائٹس کی سچویشن کو کنڈیشنز کو بہتر بنایا جائے۔ مولانا عاصم مختوم سمیت دیگر نے انسانی حقوق کے فروغ پر بات کی۔ انسانی حقوق اور اقلیتوں کے تحفظ کے لیے شروع کیے گئے اس منصوبے کو شرکا نے معاشرتی ہم آہنگی اور بہتر طرز حکمرانی کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا۔ کیمرہ مین رانا اظہر اور زامن عباس کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم کا تاریخی اقدام جوڈیشل افسران کے لیے جدید انٹیگریٹڈ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے عدالتی کارکردگی کو مزید بہتر، شفاف اور مربوط بنانے کے لیے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ صوبہ بھر کے جوڈیشل افسران سے متعلق جدید ترین انٹیگریٹڈ جوڈیشل آفیسرز پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ افتتاح چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے کیا۔ افتتاحی تقریب کے دوران ایڈیشنل رجسٹرار آئی ٹی جمال احمد نے سسٹم کے خد و خال اور افادیت پر تفصیلی بریفنگ دی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے اس جدید نظام کی تیاری پر آئی ٹی ٹیم کی انتھک محنت اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کے اہتمام جوہر ٹاؤن میں شہید بینظیر بھٹو کی سالگرہ کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں پیپلز پارٹی لاہور کی جنرل سیکرٹری ڈاکٹر عائشہ شوکت، میاں شاہد عباس، آذین گلزار، نرگس خان، فیاض بھٹی، ملک منظر عباس نے شرکت کی۔ مقصومہ بخاری، آقا تقی شاہ،
आमिर नसीर भट्ट, एजाजुद्दीन समेत पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान शरीक हुए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने पार्टी रहनुमाओं के हमरा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का केक काटा। गवर्नर पंजाब ने कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने जुल्म के सामने कभी घुटने नहीं टेके और अपनी आवाम को कभी तन्हा नहीं छोड़ा। पाकिस्तान के अवाम की जरूरत है और पाकिस्तान की जरूरत है। आज के दिन देखिए, हम जो मर्जी कह लें, कितना टाइम हम सारा टाइम जो है वो पेट्रोल लेके और IMF से भीख मांगते रहे। ये पिछले कई सालों से हम जो है वो IMF से भीख मांग रहे हैं। इस मुल्क में किस चीज की कमी है? इस मुल्क के मैं अटक से हूँ, मेरे अटक में दरिया के साथ सोना बह रहा है, लेकिन इससे बड़ी क्या नालायकी है कि आज तक कोई पॉलिसी नहीं बनी जिससे मुल्क को फैला हो। रेकॉर्ड एक में 250 किलोमीटर के एरिया है जो कीमती धातों से भरा हुआ है। इसकी जमीन में गैस है, इसकी जमीन में तेल है, इस हर गोल में कोयला है, जिससे 3400 मेगावाट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बना के फैसलाबाद की इंडस्ट्री को दे रही है। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने मुहर्रम उल हराम की आमद के पेश नज़र मुख्तलिफ इमाम बारगाहों का दौरा किया और हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ठोकर न्याज बेग में इमाम बारगाह, ईवान ज़ैनब और ईवान हैदर पहुंचे। उन्होंने आशूरा मुहर्रम के जुलूसों के दाखिली और खारजी रास्तों और CCTV कैमरों का मुआयना किया। SP इकबाल टाउन सिद्रा खान समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान ने हिफाजती इक़दाम बारे ब्रीफिंग दी। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए तमाम पाकिस्तान के बेहतरीन साइंसदानों और मुहक्किकीन के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। सुबह वज़ीर हायर एजुकेशन राना सिकंदर हयात ने ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब में चेयरमैन पाकिस्तान हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर, चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर इकरार अहमद खान, वाइस चांसलर्स, नामवर साइंसदानों और मुहक्किकीन ने शिरकत की। दी माउंट फॉरेंसिक कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री की कॉन्वोकेशन तकरीब हुई, जिसमें मेजर जनरल नदीम अहमद राना और साबिक वज़ीर सेहत जावेद अकरम ने शिरकत की। कॉन्वोकेशन की तकरीब PC होटल में सजाई गई। 2010 ता 2024 फारूक तहसील ग्रेजुएट्स में असनात और मेडल्स तकसीम किए गए। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर नादिया नसीम ने तलबा से मेडिकल हेल्प भी लिया। प्रिंसिपल डॉक्टर नबीला रियाज ने खिताब में कहा, इदारा अब हर 2 साल बाद बाकायदगी से कॉन्वोकेशन का इनेकाद करेगा। प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नादिया नसीम ने कहा, तलबा को अमली मेयार के मुताबिक तरबियत दी जा रही है। This convocation will now become a tradition, and it will going to held after every 2 years, inshallah. The Mount Valencia College of Dentistry has continued its journey of excellence and with renewed energy, purpose and commitment. यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने एक ऐसा कोर्स या एक ऐसा करिकुलम स्टार्ट किया जहां पे पहले साल से ही बच्चों को क्लिनिकल या हॉस्पिटल का एक्सपोजर होगा और वो 4 साल कॉन्टिन्यूस हॉस्पिटल का या क्लिनिकल एक्सपोजर लेते रहेंगे। साबिक वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने तलबा को मशवरा दिया कि वो डेंटिस्ट्री को महज शोबा नहीं बल्कि अपना पैशन बनाए। पाकिस्तान में डेंटल सहूलियात का फुकदान है, इस शोबे में मजीद काम की जरूरत है। डेंटिस्ट की बहुत ज्यादा क्वालिटी की भी बहुत ज्यादा जरूरत है और क्वांटिटी की भी। 15 डेंटिस्ट हैं 1 लाख पॉपुलेशन पे, ठीक है, होने कितने चाहिए? 18। तो हम बहुत पीछे हैं। आपके आने से कुछ बेहतरी आएगी और बैचेस के आने से बेहतरी आएगी, लेकिन आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट डेंटिस्ट्री शुड बी वेयर इट डिजर्व्स टू बी। मेजर जनरल नदीम अहमद राना खिताब में बोले, डेंटिस्ट्री एक बावकार शोबा है। तलबा जिंदगी में हमेशा ईमानदारी और पेशावराना इखलाकियात को मुकद्दम रखें। डेंटिस्ट्री इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन, आई मस्ट एडमिट दिस। इट रिक्वायर्स प्रिसिजन, patience, empathy and resilience from the provider. Every patient we treat places her trust in your hands. We should never take this trust lightly. Excellence in our profession is not measured only by skill, but is coupled with character. तकरीब में शरीक तलबा का कहना था ये इनकी जिंदगी का यादगार दिन है। बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारी कॉन्वोकेशन थी, बस अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है सबसे पहले, पेरेंट्स का शुक्र है जिन्होंने रातों को उठ के और सुबह उठ के मुझे उठाते थे। After 16 years they're having this event and I'm really happy. We won some
medals as well. तो अल्हम्दुलिल्लाह आई फील वेरी हैप्पी. हमारे सारे पेरेंट्स की, हमारी फैमिलीज़ की, सबकी दुआएं हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ. आज बहुत ही अच्छा लग रहा है, 4 साल बाद ग्रेजुएट हुए और वालिदैन की जो मेहनत थी साथ और अपनी मेहनत करते हुए जो, और आज बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि वालिदैन के सर फख्र से बुलंद किया. तकरीब में प्रिंसिपल इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, तैयबा वसीम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर जोहरा खानम, प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम और दीगर भी मौजूद थे. कैमरा टीम के साथ अफशान रिजवान, सिटी 42.